कमरा और उस कमरे के थोड़ा पीछे जाते हैं। Jai Gurudev. Namaskar. Good evening, dear ladies and gentlemen. On behalf of the Navanidhi team of the Art of Living, I welcome you to the online celebrations of Mak Gupta Navratri with Gaan, Prarthna, Gyan and Dhyan. Incidentally, the Mak Gupta Navratris, as we know them, are also called as Shamla Navratris. Selfless, volunteer-based, the Art of Living movement is inspired by Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji, the humanitarian, spiritual global leader and an ambassador of peace. Founded in 1981, the Art of Living has its presence in over 156 countries, touched the lives of over 450 million people, cutting across race, region, gender, religion. Gurudev has rekindled ancient knowledge and traditions and given them to us in a form relevant to the 21st century. Unique and effective techniques like Sudarshan Kriya, Sahat Samadhi Dhyan Yoga, intuition process, to name a few, have proven to be useful for personal and social transformation. With Gurudev's inspiration and guidance, we run over 702 free schools in rural and remote areas, providing free, value-based, holistic education to over 70,000 first-generation students. To mitigate the water crisis, Gurudev has inspired the Art of Living community to revive lost rivers and other water bodies. In various parts of India, till date, 43 rivers are revived in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala, benefiting 5,084 villages and over 7 million people. Coming to today's celebration, we have Niranjana ji with her melodious voice, who would be enthralling us with bhajans, the much awaited Guru Puja, and Gyan with the most revered Sadhvi Tatvamayi ji, and the chanting of the powerful Ratri Suktam with Arunima ji. Arunima ji is a senior faculty with the Art of Living. Her chanting sessions of the past 2 years have been an anchor to so very many of us during these trying times. Arunima ji's vision, zeal, and dynamic leadership has conceptualized and brought all of us together on this platform. I now request Arunima Didi to please take the program forward.
Jai Gurudev, everyone. So, welcome to the Shashti of गुप्त नवरात्रि. सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज षष्ठी में. बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमसे लोग जुड़ते जा रहे हैं. So many people are texting us, messaging us. कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें और अपनी साधना को हम how do we go deeper to all those queries, because I've not been able to answer everybody, so many messages. I would say just relax, because this is the time, as I've always said, Mother, Devi Shakti, Devi Ma is in her most benevolent form. तो बस आप बस एक भक्ति के साथ बैठ जाइए, वही बहुत है ना. और जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप चाहें तो you can light a diya in front of the Devi, or you can put a little bit of water, आपकी जैसे इच्छा है ना. आज का कलर वैसे रेड है, तो इसलिए हमारी पूरी टीम ने रेड पहना है. हाँ, और चलिए आज हम एक सुंदर से सत्र की शुरुआत करते हैं. मीनाक्षी जी जो हमारी हैं, जिनको अभी हमने सुना, she is also a very senior faculty of the Art of Living, and she is involved in the Seva projects of all our free schools all across India. Amazing work she does, and truly a Navnidhi. तो एक बार फिर नवनिधि टीम की ओर से हम सभी का स्वागत करते हैं. हम स्वागत करते हैं आज की हमारी जो सिंगर हैं, निरंजना जी. हमारी निरंजना जी जो है ये क्लासिकली ट्रेन्ड हैं और आर्ट ऑफ लिविंग भजन्स जो हैं ये पिछले 15 साल से गा रही हैं. शी हैज अ क्लासिकल वोकल स्कूल नेम अनुभव, एंड शी अलॉन्ग विद हर ब्रदर विष्णु, इन लोगों ने बहुत सारे अपने सीडीज इनके रिलीज हुए हैं और बहुत ही अमेजिंग सिंगर हैं. तो मैं स्वागत करती हूँ निरंजना जी का, और मैं स्वागत करती हूँ साध्वी तत्वमयी जी का. साध्वी तत्वमयी जी हमारी पंढरपुर से हैं. ये जो जगह है ये तो विठल भगवान की ही भूमि है, महाराष्ट्र. आपने संस्कृत में ग्रेजुएट किया है, एंड यू आर एन MSc इन योगिक साइंस, और आप पंढरपुर आश्रम में ही रही हैं जन्म से. आप 10 साल से आप आर्ट ऑफ लिविंग में हैं, एंड नाउ शी इज सर्विंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर एट आवर श्री श्री आश्रम, श्री क्षेत्र पंढरपुर. तो साध्वी जी, हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं. आपको बहुत बहुत हृदय से, पूरी टीम की ओर से, जितने लोग हमको सुन रहे हैं उन सभी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम. हम सत्र की शुरुआत करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, भजन से. जय गुरुदेव. देवदेवेश्वरं सुतं देवं सरसोद्यान भूषणं कल्पद्रुमं भक्तानां वन्दे सिद्धिविनायकम्. गौरी
शुभानना पार्वती नन्दन शुभानना 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 पाहि प्रभो मां पाहि प्रसन्ना पाहि प्रभो मां पाहि प्रसन्ना गिरिजानन्दन निरञ्जना गिरिजानन्दन निरञ्जना गौरी नन्दन गजानना गिरिजानन्दन निरञ्जना गणराय 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 सिद्धिविनायक गणराय 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 मङ्गलमूर्ति गणराय शिव गौरी सुत शरणं गणेश शिव गौरी सुत शरणं शरणं गणेश We'll hear one Devi bhajan. स्वागतम् स्वागतम् श्री जगदीश्वरी दुर्गा श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता स्वागतम् सुस्वागतम् स्वागतम् सुस्वागतम् श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता स्वागतम् सुस्वागतम् राजराजेश्वरी राजीवनेत्री राजराजेश्वरी राजीवनेत्री शिवमनोरञ्जनी भवभयभञ्जनी शिवमनोरञ्जनी भवभयभञ्जनी श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता स्वागतम् सुस्वागतम् सृष्टि स्थिति लय कारिणी देवी सृष्टि स्थिति लय कारिणी देवी दुष्ट निग्रह शिष्ट
माता श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं विश्वरूपिणी विश्वधारिणी विश्वरूपिणी विश्वधारिणी पालय मां सर्व पापनाशिनी पालय मां सर्व पापनाशिनी श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता श्री जगदीश्वरी दुर्गा माता स्वागतं सुस्वागतम्। जय गुरुदेव। आइए सभी मिलके इस क्षण हम कृतज्ञता की प्रार्थना करते हैं। अपनी कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। जीवन में हमें जो भी मिला उसमें जितने भी लोगों का हाथ है या योगदान है, शक्तियों का योगदान है, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। एक स्वर में सब एक साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस लेके ओमकार का उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंधी रखते हुए समस्त गुरु शक्तियों का स्मरण करके उनको हम पूरे हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पहले भी जितने गुरु आए हैं, अभी हैं या भविष्य में आएंगे, उन सभी गुरु शक्तियों को नमन। अपने इष्ट का स्मरण करें और जितने भी देवी देवता हैं उन सभी का स्मरण करके उनको हम सादर प्रणाम करेंगे। अपने कुल देवता को प्रणाम करें। हम जहां रहते हैं वहां के नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी को पूरे हृदय से प्रणाम। नवग्रह को प्रणाम करते हैं। अपने पितरों को प्रणाम करें। गुप्त नवरात्रि बहुत ही शुभ समय है जब हम अपने पितरों को
प्रणाम करके उनसे हम कृपा पाते हैं। उनकी पितरों को प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम करें। घर में जो ज्येष्ठ हैं उनको प्रणाम करें। और घर में जितने भी लोग हैं हमारे, हमसे बड़े हैं या हमारे उम्र के हैं या छोटे हैं, सभी को पूरे हृदय से प्रणाम। वो हैं तो जीवन कितना सुखमय है। और घर में जितने लोग हमारे लिए काम करते हैं, या बाहर ऑफिस में हो या समाज में हो, सभी को पूरे हृदय से प्रणाम। इस पृथ्वी के जन जन को प्रणाम। इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को प्रणाम। पंच महाभूत को प्रणाम। और अपने इस शरीर को सर्वविशिष्ट प्रणाम, जिसमें हम कुछ ही समय तक हैं और जो ईश्वर की ओर से मिली हुई सबसे दिव्य रचना है। और आज मां कात्यायनी का स्वरूप याद करके हम उनको प्रणाम करते हैं। मां की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। और इस क्षण मन में जो भी शुभ संकल्प उठ रहा है या कोई भी इच्छा है, उसे मां के चरणों में अर्पित कर दें। गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके खाली होकर आराम से बैठेंगे। जय गुरुदेव। हम सभी मिलके प्रणाम करते हैं साध्वी तत्वमयी जी का। जैसे मैंने कहा, आज मां कात्यायनी का दिन है। साध्वी तत्वमयी जी हमारे साथ हैं। इसे लग रहा है बस मां ही के साक्षात हमें दर्शन हो रहे हैं। आपको सभी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम साध्वी जी। श्रद्धा और समर्पण पूर्वक गुरु पूजा करते हैं। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मत् श्री गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मदेव पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गरुडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि।
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानि लिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आराधिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पाञ्जलि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुचरणं सदा भजो गुरुचरणं सदा भजो चिन्मयमानसहंसा गुरुचरणं सदा जभो चिन्मयमानसहंसा गुरुचरणं सदा जभो परममानसहंसा गुरुचरणं सदा जभो परममानसहंसा ओ गुरुचरणं सदा भजो चिन्मयमानसहंसा जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय रवितेज शंकर देव जय रवितेज शंकर देव सुमेरुवासा सदा मन्दहासा सुनयन ज्ञान प्रकाश जय 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 गुरुदेव जय जय
सदा भजो चिन्मय मानस हंसा गुरुचरणं सदा जपो परममानस हंसा ओ गुरुचरणं सदा भजो चिन्मय मानस हंसा। जय गुरुदेव। आइए सभी मिलके एक स्वर में रात्रि सूक्तम का पाठ करते हैं। ये स्तुति ब्रह्मा जी ने की थी माँ की। जिनको आता है वो साथ में पढ़ेंगे, बाकी ध्यान कर सकते हैं। माता के स्वरूप का ध्यान करके हम इसको पढ़ेंगे। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतधार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पार्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ध्येस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिणी बाण भुषुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तत्स्वां कं स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै
स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। जननी 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 अम्ब परमेश्वरी अखिलाण्डेश्वरी अम्ब परमेश्वरी अखिलाण्डेश्वरी आदिपरा शक्ति पालय माम् आदिपरा शक्ति पालय माम् अम्ब परमेश्वरी अखिलाण्डेश्वरी अम्ब परमेश्वरी अखिलाण्डेश्वरी आदिपरा शक्ति पालय माम् आदिपरा शक्ति पालय माम् श्रीभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी श्रीभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी आनन्दरूपिणि पालय माम् परमानन्दरूपिणि पालय माम् अम्ब परमेश्वरी अखिलाण्डेश्वरी आदिपरा शक्ति पालय माम् श्रीभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी श्रीभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी आनन्दरूपिणि पालय माम् परमानन्दरूपिणि पालय माम् अम्ब परमेश्वरी अखिलाण्डेश्वरी अम्ब परमेश्वरी अखिलाण्डेश्वरी आदिपरा शक्ति पालय माम् आदिपरा शक्ति पालय माम् आदिपरा शक्ति पालय माम्। सभी एक बार फिर हम साध्वी जी का प्रणाम करते हैं। साध्वी जी आपको, और हम जानना चाहेंगे तो दुर्गा सप्तशती के जो कहानियां हैं उसमें उनका जो गूढ़ अर्थ है, आप उसमें हमें बताइए क्या है वो, और सिद्धियों को लेकर जो मन में इतना कौतूहल है, क्या है ये सिद्धियां।
उस पे भी हम चाहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसां मञ्जुलवाग्विलासम् माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गी मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कूचोन्नते कुङ्कुमरागशोणी पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः। यहाँ इस पावन अवसर पर उपस्थित आप सभी के हृदय में विराजमान शक्ति को प्रणाम करते हुए आज के चिंतन की ओर बढ़ते हैं। बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है आप सभी को यहाँ प्राप्त करते हुए। हम जहाँ से अभी आपसे जुड़े हुए हैं वह संतों की नगरी, वो वैकुंठ कहा जाता है, पंढरपुर क्षेत्र। अनेक संतों ने गाया, अनेक संतों ने भगवान के स्मरण में नृत्य किया। ऐसी यह भूमि आप सभी को देखकर उसकी याद आई। कहते हैं कि भरतखंडे नरदेह प्राप्ति, मराठी है ये, संत नामदेव राय का एक वचन है। भरतखंडे नरदेह प्राप्ती त्याची परमभाग्याची संपत्ती, तेथेही विवेक परमार्थी त्याचा वशवर्तिनी परमात्मा। इसका अर्थ भरतखंडे नरदेह, पहली बात तो इस भरत भूमि में नरदेह प्राप्त होना, ये तो परम भाग्याची संपत्ति, उसको कहते हैं कि यही परम भाग्य है। ये सब हम भाग्यशाली है, वो परम भाग्य की संपत्ति है। उसमें भी सिर्फ जन्म काफी है क्या? उसमें भी तेते ही विवेक को परमार्थी, हमारा विवेक हमें परमार्थ की ओर ले जाए, त्याचा वशवर्ती में परमात्मा। परमात्मा कहते हैं मैं उसी के पास वास करता हूँ। इसीलिए हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि नरदेह प्राप्ति तो हो गई, लेकिन परमात्मा हमारा जो विवेक है वो परमात्मा की ओर ले जा रहा है। इसलिए ये जो श्रृंखला चल पड़ी है हमारा सब, ये इतना सुंदर सत्संग अरुणिमा जी, मीनाक्षी जी, निरंजना जी के साथ हो रहा है, ये परम भाग्य की संपत्ति है। जब हम भाग्यशाली प्राप्त करते हैं तो क्या आनंद निर्माण होता है, कृतज्ञता आती है, और उसी के साथ जो भी गुण तत्व है वह प्राप्त करने की जो पात्रता है वो भी आ जाती है। तो बड़ा सुंदर दिन है आज का, षष्ठम दिवस नवरात्रि का, देवी कात्यायनी का स्मरण करने का दिन। क्या है कात्यायनी का स्वरूप? चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। देवी कात्यायनी का स्वरूप का वर्णन ऐसा है, आपने चित्र में भी देखा होगा। तो देवी शार्दूल वरवाहना, शार्दूल माने सिंह पर विराजमान करुणामयी शक्ति, और एक हाथ वरद हस्त में है, एक हस्त अभय हस्त में है। एक हाथ से अभय दे रही है कि मैं साथ में हूँ, एक हाथ से वह वरदान दे रही है भक्तों को जो चाहिए वह इच्छित श्रेयस्कर। दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिया हुआ है और एक हाथ में त्रिशूल है।
गुरुदेव कहते हैं कात्यायनी वह शक्ति है जो इंद्रियों से परे और तर्क से परे जो शक्ति है वह कात्यायनी शक्ति है। कत नाम के एक महर्षि रहे जिनके नाम से कात्य गोत्र निकला और कात्यायन नाम के उनके जो वंशज पुत्र थे उन्होंने देवी माँ की बहुत आराधना की। तपस्या के बाद जब देवी माँ उनको प्रसन्न हुई और उनसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। कात्यायन ऋषि तो तृप्त ऐसे भाव में रहे, उनको और कुछ चाहिए नहीं था, तो उन्होंने देवी से पूछते हैं, कात्यायन ऋषि पूछते हैं कि माँ मेरी और कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले, ये हमारी इच्छा है। तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवी वरदान देती है और यह समय वह था जब पृथ्वी पर महिषासुर का बहुत पीड़ा लोगों को हो रही थी। तब जब ब्रह्मा सारे देवी देवता जब विष्णु शक्ति के पास जाते हैं तब परमात्मा विष्णु ब्रह्मा और शिव शक्ति की जो शक्ति से कात्यायन ऋषि के वंश में देवी का जन्म होता है और वह कात्यायनी कहलाती है। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि कितना सुंदर है कि एक भक्त का नाम से देवी का जुड़ जाना, तादात्म्य होना। कात्यायनी शक्ति जो है वह भक्तों को साथ वरदान तो प्रदान करती ही है, लेकिन वह शक्ति इस संसार में जो अदृश्य अव्यक्त जगत है उस पर विराजमान है, उसको वो आधिपत्य करती है। गुरुदेव कहते हैं कि जो दिखता है वो बहुत सीमित है, जो दिखता नहीं है, जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, वो और उसको अव्यक्त और अचिंत्य इसलिए कहा जाता है कि जिसके बारे में हम तर्क नहीं कर सकते। तो वो तर्क से परे जो दुनिया है, जो रहस्यमयी जगत है, उस पर जो आधिपत्य करती है वह कात्यायनी है। नवदुर्गाओं से कात्यायनी के साथ साथ आज हम सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। कल हमने चंड और मुंड का श्रवण किया और आज हम श्रवण करने वाले हैं रक्त बीज नामक एक राक्षस का वध देवी करती है। उसका जो रहस्य है, उसकी जो कथा है वह हम सुनेंगे। जब युद्ध हो रहा था देवी चंडिका और असुरों के मध्य में, कल हमने जैसे कि चंड और मुंड के बारे में सुना। चंड और मुंड आपने पहले से सुनते अभी तक आए होंगे। वो जो थे शुंभ और निशुंभ के पक्ष से, उनकी आज्ञा से उन्होंने देवी से युद्ध किया था। वैसे ही यह रक्त बीज नामक राक्षस भी चंड और मुंड के साथ साथ ही शुंभ निशुंभ के जो सेना थी उसमें इनका जिक्र किया जाता है। अष्टम अध्याय की शुरुआत ये होती है कि शुंभ को बहुत क्रोध आ गया चंड और मुंड के वध से। उस क्रोध में अपनी सारी सेना को लेकर यह शुंभ निकल पड़े देवी से युद्ध करने के लिए। जब युद्ध करने के लिए निकले तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सारे देवता देवी माँ की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनसे एक एक शक्ति का निर्माण होता है। जैसे ब्रह्मा शक्ति है तो ब्रह्माणी, इंद्र से ऐन्द्री,
कुमार जो कार्तिकेय है उनसे कौमारी विष्णु शक्ति का जो शक्ति है वो वैष्णवी, ऐसे अलग अलग शक्तियों का निर्माण देवी की सहायता के लिए होता है। चंडी का युद्ध कर रही होती है। इन सारे देवी देवताओं के साथ जब शिव जी विराजमान होते हैं युद्ध में, तो शिव जी देवी को कहते हैं, मेरे प्रीति के लिए आप इन सारे असुरों का विनाश कीजिए। शिव जी देवी से यह बात कहते हैं। तब जो ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, कुमार, कार्तिकेय की शक्ति, इंद्र की शक्ति से निर्माण हुए ब्रह्माणी, ऐन्द्री, ये सारे देवी देवताएं थे। उसमें से एक देवी परमात्मा शिव जी से कहते हैं, हे परमात्मा, आप हमारे दूत बन के शुंभ के पास जाइए और उनसे कहिए कि आप अगर अपना आप जीवित रहना चाहते हैं तो युद्ध ना करें। अगर जीवित नहीं रहना चाहते, अगर वो अहंकार से मदोन्मत्त हो गए हैं, तो आए और हमसे युद्ध करें। अभी कितना सुंदर है ये कि देवी शिव जी को दूत बनाए। इसलिए ललिता सहस्त्रनाम में एक देवी का नाम आता है, शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवंकरी। शिव जी को दूत बनाते हुए शुंभ के पास भेजना। शिव जी जाते हैं, हमको पता है ना, जैसे कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो कृष्ण ने मध्यस्थी तो की। साम दाम दंड भेद से यह दुनिया, ये युद्ध सब चलते हैं। वैसे यहाँ पे साक्षात शिव जी मध्यस्थी करने के लिए गए और शिव जी उनका संदेश पहुंचाते हैं कि देवी, उनका ऐसा संदेश है आपके लिए कि आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो युद्ध ना करें। अगर अहंकार से मदोन्मत्त होते हुए इसके पश्चात भी आप युद्ध करना चाहे तो आपका स्वागत है। तो इस संदेश को सुनकर दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं ना, एक ज्ञानी का और एक अज्ञानी का। अज्ञानी रहा, शुंभ को और क्रोध आ गया और अपनी सेना के साथ वह देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। देवी पर अलग अलग प्रकार के बाणों का वर्णन आता है दुर्गा सप्तशती में कि अलग अलग बाणों से देवी से युद्ध हुआ। उनका उतना ही प्रत्युत्तर देवी ने दिया। अलग अलग देवियां भी जो शक्ति निर्माण हुई थी, अनेक मातृगण दैवी शक्तियां, वह भी शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। फिर शुंभ के ही आज्ञा से रक्त बीज नामक महासुर युद्ध करने के लिए देवी के पास आ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले युद्ध होता है उनका ऐन्द्री से। ऐन्द्री जो इंद्र से निर्माण शक्ति, इंद्र से आई हुई शक्ति। तो इंद्र के पास क्या रहा? वज्र था। और देवी इंद्र से प्राप्त वज्र से युद्ध करने लगी। एक ही वज्राघात से रक्त बीज के शरीर से अनेक रक्तों के रक्त बहने लगा, रक्तों के बिंदु बहने लगे। तो रक्त बीज का वर्णन ऐसा है देव दुर्गा सप्तशती में कि रक्त बिंदु यदा भूमौ पततस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्या तत्प्रमाणास्तदात् कुरु। जैसे वह रक्त बिंदु भूमि पर, मेदिनी पर, पृथ्वी पर पड़ती थी, वैसे सब प्रमाण माने वैसे ही बिल्कुल उतना ही पराक्रमी, उतना ही शूरवीर, उसके ही जैसे दिखने वाला और एक रक्त बीज निर्माण हो जाता था। उसको वह वर प्राप्त था, उसके हिसाब से वह होने लगा। तो अनेक रक्त बिंदुओं से निर्माण रक्त बीजों के साथ देवियां युद्ध करने लगी। यह सब जब चंडिका देखती है, यह युद्ध हो रहा है, जैसे यह युद्ध आगे बढ़ रहा है तो रक्त बीज के खून की नदी बह रही है और इस नदी में अनेक रक्त बीज निर्माण हो रहे हैं और इस पृथ्वी को व्याप्त कर रहे हैं, पृथ्वी पर उन्माद मचा रहे हैं। ये जब देखते हैं चंडिका परमेश्वरी माता, तो वह
काली को आज्ञा करते हैं। काली को कहते हैं कि उवाच कालिं चामुंडे विस्तीर्णं वदनं कुरु। उवाच कालिं चामुंडे विस्तीर्णं वदनं कुरु। इसका अर्थ क्या है? काली को आज्ञा करते हैं, हे काली आप अपना वदन माने अपना मुख को विस्तीर्ण करो और एक एक बूंद जो रक्त बीज के शरीर से रक्त की निकल रही है उसको आप ग्रहण करो और उसको ग्रहण करते हुए इस पृथ्वी पर आप संचार करो, इस रणांगर पर आप वास करो। इस आज्ञा के साथ, चंडिका की आज्ञा के साथ देवी भ्रमण करना शुरू करती है। रक्त बीज को एक एक प्रहार होता है, उसके साथ एक एक बिंदु गिरती है, उस एक बिंदु को काली माँ ग्रहण करती है। जो पृथ्वी पर गिरा हुआ था वह तो ग्रहण हो गया, जो अभी गिर रहा है वो भी ग्रहण हो गया, और अभी उसके शरीर में जो है वह रक्त भी जब ग्रहण हो गया तो रक्तहीन रक्त बीजासुर निर्बल हो गया और वह भूमि पर जब देवी की गदा की प्रहार से जब वह भूमि क्षय हो गया तब देवी उनका संहार करते हुए इस पृथ्वी को दैत्य से मुक्त करती है। इतनी सुंदर कथा है, हम सुनते आए हैं, लेकिन एक जब समर्थ गुरु होते हैं ना तो उस कथा के पीछे जो हमारे जीवन में आवश्यक है वह ज्ञान भी हमारे जीवन में ना कि बस हम सुनते हैं, वह धीरे धीरे उतरने भी लगता है। गुरुदेव कहते हैं कौन है ये रक्त बीज? हमारे शरीर में, हमारे डीएनए में अलग अलग गुण होते हैं। वह गुण हम कैसे होते हैं? एक तो माता पिता से प्राप्त होते हैं, माने वंश परंपरा से आए हुए अनेक गुण, अवगुण ये सारे होते हैं। पिछले कर्मों से आए हुए गुण होते हैं। तो जब कर्म यह विषय आता है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अति गहन है। भूतकाल के कर्मों, भूतकाल के जो हमारा जन्म रहा हो, माता पिता का जो समय रहा हो, उनसे प्राप्त जो हमको गुण है उसके हिसाब से आज हम कर्म करते हैं, यह मान्य है सभी को, है ना? और आज के कर्मों पर हमारे भविष्य के कर्म भी निर्भर करते हैं। तो ये कर्मों की श्रृंखला लगी रहती है, जैसे कि वो एक बूंद टपकता है रक्त बीज से और नया रक्त बीज निर्माण होता है, वैसे ही कर्मों की श्रृंखला लगी रहती है। तो इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए कौन आया? जब शक्ति जागृत हुई, वह शक्ति ने इस श्रृंखला को विनाश किया। जब हम शक्ति जागृत होती है तो हम सजग हो जाते हैं, तब सारे कर्म जो है वह, जब हम सजग होते हैं तो क्या होता है? वर्तमान क्षण में होते हैं, और इस क्षण में हम 100% होते हुए जो भी कर्म करते हैं वही नैष्कर्म सिद्धि, वो कर्म अकर्म में प्राप्त होते हुए हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। मोक्ष क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई इच्छा ना रहे वही मुक्ति है। और हमारी सारी इच्छाएं, हमारा अलग अलग तादाद में, ये सारे रक्त बीज के समान होते हैं। एक से दूसरा निर्माण हुआ, दूसरे से तीसरा निर्माण हुआ, तीसरे से फिर वह श्रृंखला बनी रहती है। फिर मुक्तता कब? जब देवी शक्ति जागृत होगी तब। वह दैवी शक्ति, अभी आपके मन में प्रश्न होगा तो ही दैवी शक्ति जागृत होने के लिए क्या करना है? फिर से वही बात, समर्थ सदगुरु के शरण में जब हम आते हैं तो
अपने आप शक्ति जागृत होती है। और जो हमारा जैसे कि आज तक हमको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह गुरु तत्व से आगे भी जाकर जो प्राप्त होने वाला है, अभी भी जब हम सुन रहे तो कुछ समझ में आ रहा है, वो सब हमारे भीतर विराजमान गुरु तत्व की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि गुरु पूजा में यद्वारे निखिलानि लिंग परिषद सिद्धिं विधत्ते निशम्, जिनके द्वार में सदावकाल सिद्धियां खड़ी है, सिद्धि प्रदान करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए। तो जैसे आप सिद्धियों की श्रृंखला सुनते आए हैं, अनिमा लघिमा गरिमा, इसी सिद्धियों में जो पांचवी सिद्धि है वह है प्राप्ति। प्राप्ति क्या है यह प्राप्ति? जीवन में हमको अनायास से जब सब प्राप्त होने लगे, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि अनायास रूप से प्रयत्न से जो प्राप्त होता है वह तो है ही। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत प्रयत्न कर ले और कुछ भी ना प्राप्त हो, यह तो बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। वहां पे ऊर्जा की कमी है, वहां पे शक्ति का जागृत होना आवश्यक है। दूसरा बात यह है कि कुछ प्रयत्न से प्राप्त करना, कुछ हम इच्छा कर रहे हैं, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ प्रयत्न करना और उसको प्राप्त करना। और तीसरी बात यह है कि मन में इच्छा उठने से पहले ही वह इच्छा की पूर्ति होना। इसका अनुभव आप सब भी कर चुके होंगे, जीवन में कभी ना कभी इसका अनुभव हमको होता है ना। इस सिद्धि का अनुभव होता है कि सुबह हमने कुछ सोचा और वही हमको प्राप्त हो गया। कभी कभी सोचने के बिना भी प्राप्त हो जाता है और फिर लगता है अरे हमको जीवन में इसी की आवश्यकता थी। प्राप्त होने के बाद पता चला कि इससे हमारा जीवन और सुखद हो गया। इसी को कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। अभी यह सिद्धि काफी लोग कहते हैं कि हमारा मन में जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो जाए, हमको जहां जाना चाहे, मतलब इसमें वस्तु की इच्छा हो गई, व्यक्ति हो सकती है, धन की हो सकती है, किसी भी चीज की प्राप्ति की इच्छा हो सकती है, पद की हो सकती है, उसके साथ ही साथ कहीं जाने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, अलग अलग इच्छाओं की तो श्रृंखला का कोई गणना नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मन में इच्छा हो गई, वहां पे हम पहुंच गए, और ये सब तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में इसका अनुभव हम करते हैं। जो हमारे अंदर बैठी हुई दैवी शक्ति है, वह हमको जो चाहिए, वह हमारे लिए जो श्रेयस्कर है, उसकी प्राप्ति तो करा ही देती है। लेकिन वह दैवी शक्ति हमसे, गुरुजी बार बार कहते हैं इस बात को, कि हमसे भी वह ज्यादा प्रेम करती है हमसे। उसको पता है हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है। श्रेय क्या है? अभी इसमें दो बातें होती है ना, एक प्रिय और श्रेय। कुछ बातें हमको बहुत प्रिय होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए श्रेयस्कर हो। जैसे कि मीठा खाना हमारे लिए बहुत प्रिय हो सकता है, लेकिन अगर हमको वैद्य जी ने बताया है कुछ पथ्य कि आपको मीठा खाना आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो प्रिय होते हुए भी वह चीज आपके लिए क्या नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। लेकिन देवी माँ इतनी करुणामयी है,
कि वह जानती है हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, क्योंकि दृष्टा स्वरूप में वह हमारे भीतर विराजमान है। वह बाहर चराचर में तो है ही, कण कण में तो वो वास करती ही है, लेकिन हमारे भीतर वो सदा काल विराजमान है। बस गुरु जी कहते हैं ना, वो अनवेलिंग की आवश्यकता है। ये सब साधना, सेवा, सत्संग, ये श्रवण करना, ये सब वो अनवेलिंग का ही बात है। जैसे कि कन्नड़ में एक संत रहे, उन्होंने कहा, परमात्मा आप तो मेरे आजू बाजू में थे, मेरे भीतर थे, लेकिन जब मैं आपके भक्तों के सानिध्य में आया, आपके भक्तों के सत्संग में आया, ध्यानवनु आडिदेनु मौनवनु ताडिदेनु, वो भजन है कन्नड़ में, लेकिन जब मैं सत्संग में आया तब मुझे आप पता चले, आपका स्वरूप समझ में आ गया, कहते हैं। तो ये सब जो भी है हम श्रवण कर रहे हैं 5वें 6ठे दिन आज, ये सब अनवेलिंग है। वह हमारे भीतर जो दृष्टा स्वरूप में विराजमान है, वह सब श्रेयस्कर जानती है, प्राप्ति कराती है। फिर से वह प्राप्ति सिद्धि के बारे में बात करते हुए यही है, एक भक्त के लिए जो जरूरी है, जो आनंददायी है, उसको प्रसन्नता देने वाला है, जो श्रेयस्कर है, वह कौन जानता है? हमसे ज्यादा वह दैवी शक्ति जानती है। और भक्त का इस पर दृढ़ विश्वास रहता है। क्या शब्द है? दृढ़, माने वो हिलता नहीं है। एक भक्त के लिए सभी कुछ प्रसाद होता है ना। किसी से गाली मिले वो भी प्रसाद, किसी से निंदा सुने, किसी से स्तुति सुने, वह भी प्रसाद। और वो प्रसाद को हम कैसे लेते हैं जीवन में? बहुत ही आदर के साथ ना। प्रसाद के ऐसे ऐसे नहीं लेते, बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। जब जीवन में जो भी प्राप्त है उसको हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो जीवन की ओर देखने का जो नजरिया है, एटीट्यूड है, वो भी सम्मान में बदल जाता है। और जीवन आनंदी होता है। तो आज का जो सत्र है, देवी कात्यायनी, रक्त बीज, चंडिका काली परमेश्वरी, इसके साथ साथ ये बड़ा सुंदर बात है, प्राप्ति सिद्धि का इनके साथ जो संबंध है ना। गुरुदेव जो कहते हैं, हमारे भीतर जब दृष्टा भाव जागृत होता है, तब जो ऊर्जा का वो अनुभव होता है, वही कात्यायनी शक्ति है। और वो दृष्टा भाव क्या करता है? वह इंद्रियों के परे जो है, वह जैसे कि उदाहरण के लिए इंद्रियों के परे का ज्ञान क्या है, उसका उदाहरण आपको अगर आसानी से बताया जा सके तो वह है इंट्यूशन, प्रज्ञा। प्रज्ञा हमारे जो इंट्यूशन किड्स है, वह आंखें बंद करके सब बातों को करते हैं, है ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो इंद्रियों के परे का ज्ञान, नॉलेज बियॉन्ड द लॉजिक, वह जो है वह देवी कात्यायनी। और वही हमको जीवन में ये सब कुछ जो है प्राप्त अब तक है और आगे होने वाला है, वह देवी की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मीनाक्षी जी। Amazing. Just an taste.
Sadhvi ji, can we request you to guide us through a meditation, please? Yes. Arunima ji, does time permit? Yes, everybody is waiting for the meditation. So important, no? Especially in these days. And after listening to such a deep knowledge, so very sublime knowledge, I'll say. Sadhvi ji, can you please guide us through meditation? Sure. रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ दें। पुनः एक गहरी सांस लीजिए सांस को रोके रोकना छोड़ दे तो सांस अपने आप बाहर आती है। शरीर स्थिर है, मूर्तिवत। स्मरण मात्र से चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। प्रसन्नता पूर्वक विश्राम करें। अब तक जो भी श्रवण किया, पठन किया, स्मरण करने की कोशिश की, उस सारे प्रयत्न को देवी माँ के चरणों में समर्पित करते हुए खाली हो जाते हैं। शरणागति के साथ विश्राम। सांस की सूक्ष्म गति की ओर ध्यान दीजिए।
भीतर जो शक्ति की अनुभूति हो रही है, साक्षी रूप से इसका अनुभव करें। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रसन्नता पूर्वक एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं। वातावरण के प्रति सजग होते हुए और एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए प्रसन्नता पूर्वक अगर मन करे तो
आप आंखें खोल सकते हैं। देवी भवानी मां, काली कपालिनी मां, जगदो धारिणी मां, जगदो धारिणी मां, आनन्दरूपिणी मां।
नमो नमो कार्तिकेय नमो नमो षण्मुखनाथ नमो नमो सुब्रह्मण्य नमो नमो स्वामिनाथ नमो नमो कार्तिकेय नमो नमो षण्मुखनाथ नमो नमो सुब्रह्मण्य नमो नमो स्वामिनाथ नमो नमो स्वामिनाथ नमो नमो स्वामिनाथ Arunima has to be unmuted, please. ओके आई फॉरगॉट। एकदम ऐसे निरंजना जी ने इतना सुंदर देवी भजन गाया, ऐसे खो से गए उसी में। थैंक यू सो मच निरंजना जी। मीनाक्षी जी, कोई प्रश्न है साध्वी जी से? जी जी एब्सोल्युटली है, क्यों नहीं, काफी सारे हैं प्रश्न, बट वन इज ऑफ कोर्स साध्वी जी, द manana and nididhyasana has to be done of the knowledge that has been imparted. इसके अलावा quite a few people, there's one question that is coming quite often from people कि को सब कुछ है materialistically, everybody, like people have, you know, they have a very decent standard of living, and there is no lack of you know, or a dearth of the necessities of life, and they have a little more than their needs. They have quite a lot of greeds that are also being fulfilled. Yet, in spite of that, the dining table is laden with goodies. Everyone comes, all the family members बैठते हैं, but सभी लोग अपने अपनी दुनिया में रहते हैं. Those interpersonal relationships जो एक cohesive unity, एक घर को बनाता है, that is lacking. Whether it is even when we go to social gatherings, after the niceties are done, सभी लोग अपने अपनी दुनिया में चले जाते हैं. वो जो cohesion की जरूरत है, is एक वो जो वसुदेव कुटुंबकम at the micro level और macro level जो हम बना रहे हैं, वो जो cohesion की जरूरत है, उसके लिए आप प्लीज कुछ बताइए, क्या हम लोग कर सकते हैं? क्या हमारे जिन लोगों ने भी प्रश्न उठाया, what is it that they can do? If you can throw some light, please. जब एक व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर होते हैं तो बहुत खुद को केंद्रित, स्थिर, आनंदी, प्रसन्न पाते हैं खुद को. यही अध्यात्म का लक्षण है. अध्यात्म का लक्षण क्या है? किसी को बहुत गंभीर बनाना नहीं, एक हल्कापन वातावरण में लेके आना, वही अध्यात्म है. जैसे कि संत महात्माओं के पास हम जाते हैं तो इसका अनुभव हम करते हैं, है ना, ज्यादा स्तर पर. लेकिन जो साधक है, साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए, उसके जीवन में भी यह गुरु की कृपा से प्राप्त बात आती है जीवन में कि वह जहाँ जाए वहां वातावरण में एक हल्कापन लेके आते हैं, प्रसन्नता लेके आते हैं, प्रेम अपने आप होता है. उस व्यक्ति का, उस साधक का बात करना भी आवश्यक नहीं है, बस उनकी उपस्थिति मात्र से यह सब घटित होने लगता है. यह जो प्रश्न पूछा गया है कि घर में मान लो हम 5-6 लोग हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं, मन से, मन के लेवल पर जुड़ाव नहीं है, हर एक का अपना अपना अलग सोच, अलग इस पर है. इसको कैसे करें? इसका उत्तर
अगेन वहीं पर जब हम ध्यान करते हैं, जब हम साधना करते हैं, जब ऐसे सत्संग में, ऊर्जावान सत्संग में हम रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा सबको साथ ले जाने वाली संग्रही बनती है। और उस ऊर्जा के साथ हम जहाँ पे भी जाए, चाहे वो घर में हो या हम जहाँ पे हमारा कार्य है, ऐसा वह हमारा दफ्तर हो, वहां पे हम वातावरण में प्रेम या अपने आप से जुड़ाव उसका होता है। पहले तो उसको अध्यात्म के पथ पर जो होते हैं उसको कहते हैं आत्मस्थ व्यक्ति। आत्मस्थ माने क्या? वह जो आत्मा में स्थिर हो गया हो। जो आत्मस्थ है उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सुधारने में, वो अपने आप घटित होने लगता है। लेकिन उसका रहस्य अगेन एंड अगेन सुदर्शन क्रिया में छिपा हुआ है। जैसे कि सुदर्शन क्रिया ना, यहाँ पे काफी सारे टीचर्स को भी हम देख रहे हैं, आप सभी यहाँ पे उपस्थित है, साथ ही साथ साधक भी उपस्थित है। हम सभी का ये अनुभव है, सुदर्शन क्रिया के बारे में हम बात करते हैं और सुनते भी हैं। चाहे आप उपनिषद पढ़ ले, सारे ब्रह्मसूत्र और सभी कुछ अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसका सार मिलेगा सुदर्शन क्रिया में। इतना सुंदर अद्भुत ऐसी प्रक्रिया हमारे जीवन में गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, और उसके अभ्यास से जीवन में सब अपने आप घटित होने लगेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे भीतर वह सारे गुण सद्गुण उपस्थित है। अगेन एंड अगेन हम कहना चाहेंगे, बस वह अनविलिंग की देरी है। एक दिया होता है ना, उसके बाजू में सब काला आ जाता है, उसको निकालते ही वो प्रखर हो जाता है, अगेन वो तेजस्वी होता ही है। वैसे हमारे भीतर यह प्रेम, सद्गुण, सबको जोड़ के रखने की शक्ति, यह सब उपस्थित है। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो वह सुदर्शन क्रिया से। एक बात कहा तो पता नहीं, मरुभूमि में भी वो श्लोक याद नहीं आ रहा, उसमें ऐसा कहते हैं कि मरुभूमि में भी मिष्ठान्न मिले। ऐसी सिद्धि उस शक्ति में है। प्राप्ति हर चीज की होती है अपने आप, घटना ज्यादा है यहाँ पे करने से। बाकी हम देखते हैं दुनिया में, यह करना है, वह करना है, ये करना है, ये सबसे हम थक जाते हैं। जब हम अध्यात्म के पथ पर होते हैं तो चीजें अपने आप घटित होती है, और वही सिद्धि है। और उस सिद्धि अगेन वह भी अपने आप होती है, उसको भी आप प्राप्त करने के लिए भागेंगे इसके पीछे तो वह नहीं होगी। जब हम सुदर्शन क्रिया करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, पथ पर लेने से सहज सहजता से अपने आप प्राप्त होती है। जी, we are grateful for this knowledge, साध्वी जी। हम आभार हैं, इतनी सुंदर ज्ञान आपने दिया है आज, and it has been so very beautiful, the meditation, and I think all of us would agree wholeheartedly कि it is such a need of the hour. It's so very beautiful, the space that we are all into right now, and कितनी सुंदर if you are able to, अगर हम ये बनाए रख पाएंगे तो, है ना अरुणिमा जी? yes, that is why मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक गुप्त नवरात्रि का जो समय है ना, ये एक मैंने ये भी पढ़ा कि ये पितृ लोगों के लिए कितना सुंदर समय, अभी जब हम उनको ऐसे याद करते हैं, उनको स्मरण करके उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो दे ऑल्सो
feel so happy and they bless us. And this is a very very auspicious time. और मैं सबको बताना चाहूंगी, कल भी मैंने बताया था, कल हमारा बसंत पंचमी का दिन था, तो हमने लॉन्च भी किया है. आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द साध्वीजीज फॉर हैविंग अग्रीड टू टीच दिस ब्यूटिफुल सुदर्शन क्रिया. 10, 11, 12 और 13 को जितनी हमारी साध्वी जी यहाँ पे आ रही हैं हमें ज्ञान चर्चा में, वो स्वयं लेने वाली हैं, सिखाने वाली हैं सुदर्शन क्रिया. और 13 को पूज्य गुरुदेव स्वयं वो भी आएंगे, और वो ऑनलाइन उनके साथ भी जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, आप सोचिए कितना मतलब ये सुंदर यज्ञ हो रहा है. जो भी करेगा, पहली बार जो सोचिए कोर्स करे और सीधे उसको नंबर 1 उनको साध्वी जी के साथ ज्ञान प्राप्ति हो, और लास्ट डे गुरुदेव के साथ वो कितने मतलब भाग्यशाली होंगे वो लोग. और हम उनको ये भाग्य उनका जो है वो उदय होने का अगर हम एक माध्यम बनते हैं, तो जस्ट इमेजिन हम और हमारे परिवार को भी कितना आशीर्वाद मिलेगा देवी माँ का, गुरुदेव का. तो ये एक जैसे मैं कहूंगी, ये ना एक बहुत छोटी सी मुहिम थी जो ऐसे शुरू हुई. जब कोरोना आया था तो मन में ऐसे विचार आया हमारे कि क्या कर सकते हैं, उस वक्त सब बंद हो गया, क्या कर सकते हैं. तो ऐसे लगा कि सिर्फ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सुना था प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स. एंड वी जस्ट स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल ग्रुप. वी वुड जस्ट सिंपली चैंट एंड प्रे कि सब ठीक रहे, सब ईश्वर की कृपा बरसे. और आप देखिए आज इतना बड़ा एक ये महायज्ञ हो गया, सब साध्वी जी आ गए, इतना सुंदर सत्संग हो रहा है, कोर्स हो रहा है. जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, इस महायज्ञ में महाआहुति डाल करके जरूर जरूर आप सहभागी बने. क्योंकि देखिए एक लेवल पे हम बात करें तो ये घटित हो चुका है कि किसको करना है कोर्स, कब उसको ज्ञान में आना है, ये सूक्ष्म जगत में घटित हो चुका है. लेकिन उसका जरिया हम बने, ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात होगी. तो हमने ये जो शेयर किया है पोस्टर आपसे, ये जरूर आप लोगों को आगे बढ़ाएं, बताएं लोगों को ऐसा होने जा रहा है. और बस जैसे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि एक खुशी की लहर उठनी चाहिए, बस वो खुशी की लहर किसी तरह से उठ जाए और उसमें हम भी कुछ योगदान दें, तो हमें भी लगेगा चलिए हमारा कुछ तो जीवन, हमारा कुछ तो सफल हुआ, कुछ तो सत्व का काम किया, है ना. और बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी आपका. कितना अच्छा लगा आज आपने हमारे साथ ये जो ज्ञान चर्चा की. मीनाक्षी जी, और कुछ अगर मैं भूल रही हूँ तो आप प्लीज बता दें. कल का टाइम, कल का कलर जरूर बताएं सबको. Yeah, absolutely. All of you are feeling the divinity in the evening, right? तो फिर हम कल मिल रहे हैं 7:15 sharp. Come with your family and friends. Just bring everyone, not just crowding this room. Even on FB, will updates via live. This is an opportunity that cannot be missed. और कल के लिए कलर कोड भी है. कल कौन सी कलर अरुणिमा जी? रॉयल ब्लू या रॉयल ब्लू. So all of us we will be in royal blue, and we will be enjoying. We will bask in the glories of the Divine Mother, the all compassionate, the all benevolent Divine Mother, हमारे साध्वी जी के साथ. एक बार फिर साध्वी जी आपको ऑन बिहाफ ऑफ आवर नवनिधि टीम एंड ऑल द व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत प्रणाम. जय गुरुदेव. और जितने लोग अभी हमसे जुड़े, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आप आई ये एक ऊर्जा बन रही है. और बहुत सुंदर सुंदर सरप्राइजेस हैं जो हम कल बताएंगे आपको. आई हैव सम वेरी वेरी गुड न्यूज टू शेयर विद यू. आई विल शेयर टुमारो. स्टे ट्यून्ड. जय गुरुदेव. चलिए मिलके प्रार्थना कर लेते हैं और आंखें बंद करके सबको बस आशीर्वाद दें, सब सुखी रहें. मिलके एक स्वर में करते हैं. ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। कल मिलते हैं 7:15 पे शार्प।